जो खोखे तो स्टार्ट किया सी, खोखा किहड़ी जगह सीगा तुहाडा जी? और कोई याद कोई साझी करना चाहूँगा? करनाल के पास ही मेरा गांव होता था, सांबली गांव था। सांबली, ठीक है तो जी। सांबली गांव के पास में ही बनाया हुआ था। ਵਪਾਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। कोई भी धर्म का काम या अच्छा काम कर रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं होती जी। बाकी वो एक समय ऐसा था जो हर आदमी की जिम्मेवारी बनती थी। तो लड़का मेरे पास आया जी, कुछ मतलब किसान लोग हैं और वो डिस्काउंट मांग रहे हैं कुछ खाने पे। भाई खाना खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो और डिस्काउंट में तो मैं बाहर आके देखा, क्यों न्यूज़ में तो मैं देख ही रहा था। मैं कहा चलो ये तो कोई नहीं, तो मेरे को भी था भाई नहीं अच्छा नहीं लगेगा, पैसे नहीं लेने। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। खोना पड़ा, बहुत कुछ त्यागना पड़ा, बहुत कुछ देना पड़ा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिश्तेदार नाराज भी हो गई है, क्या गवर्नमेंट से भी पंगा ले रहा है, सारे होटल भी तोड़ फोड़ दिए, बंद कर दिए। ये किसानी अंदोलन है वो ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ? जो पॉलिटिशियन है ये उनके जुमलेबाजी होती है भाई, ये उसका है, एक कौम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। लेकिन हम ग्राउंड पे हर चीज़ देखी है हमने, हर चीज़ फेस की है। ये इंसानियत की लड़ाई थी। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਰ? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी, हमारा जैसे फूड से रिलेटेड काम है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जोड़े जी, और उनका अपना काम स्टार्ट कराएं, जिससे वो अपना भी पालन पोषण करें और 10, 20, 50 लड़कों को और रोज़गार दें। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? तो हमें कभी भी बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए जी, और बेटियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। वो चाहे फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स के फील्ड में हो। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? भाई जी बड़ी कोशिश की सभी पार्टियों ने। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल सारे वीरों ਨੂੰ ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ। परिवार और व्यापार दोनों एक दूसरे से बड़े करीबियाँ हैं जी। लगभग सन 2000 में शादी हुई, तो 2003 से इस लाइन में हमने एक चाय के खोखे से शुरुआत की थी कभी जी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोखे से दुकान पे आए, दुकान से फिर छोटे मोटे ढाबे जो ट्रकों वगैरह के होते हैं जी।
तो फिर गोल्डन हट 2017 में शुरू हुआ जी और पहला जो गोल्डन हट बना वो कुरुक्षेत्र जो गोल्डन हट है वो हमारी मदर ब्रांच है, सबसे पहला जो गोल्डन हट बनाया गया। जी उसके बाद जो राई में है जहाँ किसानी आंदोलन जी मेन था जी तो वो 2019 में बनाया गया। जी जी तो बाकी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, काम धीरे धीरे आशीर्वाद मिलता गया, भाइयों का प्यार मिलता गया। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਖਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? करनाल के पास ही मेरा गांव होता था, सांबली गांव था। सांवली, ठीक है तो जी। सांबली गांव के पास में ही बनाया हुआ था। जी तो धीरे धीरे बस वो समय निकलता गया, तो परमात्मा की कृपा से आज जो ਕੁਛ आपके सामने है। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ। भाई जी वो सारी चीज़ें नेचुरल होती है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे बुज़ुर्गों ने एक ही बात सिखाई थी हमें, जी अगर आप कोई भी धर्म का काम या अच्छा काम कर रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। जी बाकी वो एक समय ऐसा था जो हर आदमी की जिम्मेवारी बनती थी, और शायद अगर हमारे गोल्डन हट के सामने ये सारा वाक्य ना बीतता होता तो हमें भी कोई शायद इतना नहीं है फर्क नहीं पैदा। तो वो हालात जो थे वो हमारी जब माताएं, बुजुर्ग माताएं और हमारे मतलब बुजुर्ग थे जो उनके हालात थे जी, वो बड़े निर्मम, मतलब बड़े देखते ही आंखों मतलब वो दृश्य आज भी याद आता है तो रूह कांप उठती है। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ करनी चाहिए? भाई जी ये बिल्कुल पहला ही दिन था जब सारे किसान भाई यहाँ अम्बाला से बैरिकेड वगैरह तोड़ के पानी की बौछारें भी हुई, बहुत कुछ हुआ जी। तो ये सभी जब दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे थे तो बॉर्डर से हमारा 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, मतलब अगर हम दिल्ली से आएंगे तो सबसे पहले ही हमारा आएगा जी। तो जब वहाँ हमने देखा कि कुछ किसान जिनकी हालात बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े भी फटे हुए थे बहुत सो गए, क्यों वो भागा दौड़ी में उसमें जो भी हालात से वो निकल के गए थे जी। तो उसको देख के तो मैं, एक चांस की बात है, मैं वही ऑफिस में ही बैठा था उस टाइम जी। तो लड़का मेरे पास आया जी, कुछ मतलब किसान लोग हैं और वो डिस्काउंट मांग रहे हैं कुछ खाने पे, भाई खाना खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो और डिस्काउंट में, तो मैं बाहर आके देखा, क्यों न्यूज़ में तो मैं देख ही रहा था, मैं कहा चलो ये तो कोई नहीं, तो मेरे को भी था भाई नहीं अच्छा नहीं लगेगा, पैसे नहीं लेने, तो मैंने बोल दिया उनको भाई आप करिए लंगर सेवा जो भी मेरे से बनेगी, जो परमात्मा कराएगा जी। तो मैंने तो ये सोचा था भाई चलो कोई नहीं, 2-4 दिन की भी अगर सेवा होगी तो करेंगे, 10 दिन की होगी तो करेंगे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, जिम्मेवारियाँ देखते हुए, मतलब जब उनका भाव और प्यार देखा मैंने जी, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, फिर जो कुछ होगा देखी जाएगी जी। तो फिर परमात्मा की कृपा से लगभग 1 साल से ऊपर आंदोलन चला। बिल्कुल जी। और उस मालिक ने जो सेवा दी हमें और जो सेवा करवाई जी, शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा एक संघर्ष का टाइम कह लो, एक प्यार का टाइम कह लो, एक स्ट्रगल का टाइम कह लो। बीच में बड़ी दिक्कतें आई गवर्नमेंट की तरफ से, तो आज भी दिक्कतें हैं ही हैं जी, लेकिन एक मन को शांति होती है जी। यार तूने कुछ अच्छा किया है, कोई नहीं, ये जो दिक्कतें आएंगी उनको भी निपटेंगे। जी। पहली बार सरकार ने कब आपके ऊपर ये कह सकते हैं अटैक ही कह सकते हैं, सरकार ने पहली बार कब किया आपके ऊपर, जो प्रशासनिक लेवल पे होता है? बस ये तो आंदोलन से शुरू ही हो गया था, और अभी तो पता नहीं कब तक, क्यों वो समय तो निकल गया लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाता है। तो एक आदमी को नज़रों में होता है कि भाई इस आदमी की वजह से सारा काम खराब हुआ था जी। तो आज भी उस चीज़ का हर्जाना हमें भरना पड़ता है किसी न किसी रूप में। और लेकिन मेरे को कोई दुख नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल जी। तो जब आप कुछ गलत नहीं करते हो
तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, ये तो ऐसे ही चलना होता है। तो अत्याचार सरकारें हुई या कोई भी किसी तरह का शासक हुआ तो चला ही है, शुरू दिन से तो चलता ही है। तो हमने उस चीज़ की कभी परवाह नहीं की और परमपिता परमात्मा से बड़ी मतलब एक अरदास करेंगे कि आगे भी कोई अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम ना आगे पीछे हटेंगे ना पीछे भी। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ? बाबू जी, ये परमात्मा जो है ना जी, इसके इच्छा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये ड्यूटी लगती है उस मालिक की तरफ से लगती है। व्यापार में कोई मैं ज़्यादा बड़ा व्यापारी नहीं, एक चाय का होखा क्या होता है, लेकिन मेरे को बुजुर्गों ने एक चीज़ सिखाई थी शुरू से ही। देखो बेटा, तू खाने पीने का काम करने तो लग रहा है, हमें खुश नहीं है इस काम से, लेकिन एक काम का ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा कोई आ जाए जिसके पास पैसे ना हो तो खाना उसको बड़े भाव से खिलाना, शायद वो कहीं ना कहीं काम आएगा। जी। तो वो बात मेरे माइंड में घर कर गई और उससे ही चीज़ को मानते हुए आज तक हम उसी चीज़ पे खड़े हैं और आगे भी परमात्मा से अरदास करेंगे कि हमारा कभी पैसे भले 2 पैसे कम हो जाए, लेकिन ये भाव जो समाज सेवा या एक जरूरतमंद की काम आना या एक लोड़मंद के काम आना किसी भी रूप में, जी, वो कभी कम ना होए। तो परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि मालिक तूने जो भी दिया है, जी, रोटी भले नमक से मिल जाए, चार से मिल जाए, क्यों, एक जिम्मेदार के बेटे हैं हम, जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी, लेकिन जो इज्जत दी है वो कभी कम ना होए। जी, बिल्कुल। भाइयों का प्यार, वो समाज के अंदर जो एक पहचान छोटी मोटी जो भी है, जी, जी, वो बनी रहे, वो जी। उसी भाव से बनी रहे, वो उसी तरीके से लोगों का, भाइयों का प्यार मिलता रहे। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? परिवार में के डर का भी माहौल था थोड़ा सा उनको। अब किसी को भी नहीं पता था ये कब तक चलेगा अब आंदोलन। क्यों, एक बारी जब आप समुद्र है वो एक, बिल्कुल, उसमें कूद गए, अब उसकी गहराई नहीं पता कितनी है जी। तो बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ त्यागना पड़ा, बहुत कुछ देना पड़ा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिश्तेदार नाराज भी हो गई है, क्या गवर्नमेंट से भी पंगा ले रहा है, सारे होटल भी तोड़ फोड़ दिए, बंद कर दिए ये। लेकिन पता नहीं मेरे को अंदर से क्या था कि नहीं, जो कुछ होगा देखी जाएगी यार, अब तो जब फ्रंट पे आ ही गया है, बिल्कुल, तो बार पार करके हटेंगे। जी, जी। तो मैंने एक ही बात बोली थी, मगर जब तक आंदोलन चलेगा आपका भाई, आपका बच्चा आपके साथ खड़ा होगा। जी, जी। और परमपिता परमात्मा ने उसके बात के ऊपर बड़े फूल चढ़ाए और आखिरी दिन तक भी अगर कोई अंदोलन में खड़ा था तो वो आपका भाई था। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ? वो मेरा खरी कमाई है, मेरा प्यार है, मतलब सभी पूरे किसान कौम के साथ है और मैं पूरे भाइयों का बड़ा दिल से आभारी हूँ जी, कि जब भी कभी जरूरत पड़ी है मेरे साथ खड़े हुए हैं और आगे भी मेरे को पता है मेरे भाई मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसी भी बात में अगर कोई किसी तरह का कोई गलत स्टेप गवर्नमेंट मेरे खिलाफ लेती है, जी, क्यों, वो विश्वास होता है एक दूसरे को, भाई ये, हाँ, तो वो मेरे को पूरा विश्वास है अपने पूरे किसान भाइयों पे पूरा, जी, कि भाई वो कभी भी मेरे से पीछे नहीं हटेंगे। जी। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ? भाई जी, पहली बात तो इसमें 2 बातें हैं जी। ये ना ही किसी कौम विशेष का आंदोलन, बिल्कुल, और ना ही कोई किसान का भी आंदोलन नहीं था जी। ये एक इंसानियत की लड़ाई थी, ये अपने हकों के लिए लड़ने की लड़ाई थी, जी। और उसमें हर कौम का, हर आदमी का उतना ही अधिकार होता है, जी, जितना कि एक कौम का होता है। मेरे ख्याल से ये जो
पॉलिटिशियन है ये उनके जुमलेबाजी होती है, भाई ये उसका है, एक कौम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। लेकिन हम ग्राउंड पे हर चीज़ देखी है हमने, हर चीज़ फेस की है। ये इंसानियत की लड़ाई थी और इस लड़ाई में हर वो इंसान था जिसके अंदर रहम है, जिसके अंदर एक भाव है, जिसके अंदर एक श्रद्धा होती है जी। तो मेरे को कोई ऐसा 1% भी महसूस नहीं हुआ कि ये किसी कौम विशेष का आंदोलन है। इसमें हर कौम का आदमी देखा हमने, इसमें मुसलमान भी देखे, सिख भाई तो फ्रंट पे ही थे और इसमें हिंदू कौम भी देखी जी। तो ये कोई हम मतलब मैं हिंदू कौम से हूँ, मैं राजपूत हूँ बाय कास्ट, तो हमने कभी सोचा ही नहीं भाई ये तो एक अंदर का भाव होता है। देखो परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, ये कौम ये जाति हमने अपनी पॉलिटिशियन को चमकाने के लिए हमने अपने एक ये जुमला है बस जो पॉलिटिशियन करते हैं, जातिवाद पे लड़ाते हैं, वो करते हैं। तो मैं उन चीज़ों से बहुत परमात्मा ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो सोच कहीं ऊपर जा चुकी है। जी जी। जब आप किसी को भी एक सुख देते हो किसी भी तरह का, बिल्कुल, किसी की हेल्प करते हो, किसी को भी किसी भी तरह से आप इमदाद करते हो, तो जो उसकी आत्मा से आपको आशीष मिलती है वो दुनिया की दौलत से काफ़ी ऊपर होती है। जी बिल्कुल। और एक अंदर से सुकून मिलता है, यार तूने बहुत अच्छा किया। और जब अंदर से आत्मा कहती है ना, देखो अगर आप कोई भी बुरा काम करने चलते हो ना तो अंदर से एक बार आवाज़ आएगी, नहीं ये गलत है। जी। हम मानने ना मानने एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ जरूर आती है गलत काम करने से पहले। ऐसा ही एक अच्छा काम के लिए भी आवाज़ आती है, भाई ये बढ़िया काम है, करो बढ़िया। वो तो जब परमात्मा आत्मा सो परमात्मा जी इंसान की अंदर ही है, जो है परमात्मा अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है जी। अगर अपने आप को सुधार ले तो बस वो परमात्मा का ही रूप होता है जी। गोल्डन हट शंभू बादल ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੇ ਜੀ? गोल्डन हट कुरुक्षेत्र और राई तो है ही है, उसके बाद हमने डेरा बसी बनाया था जी। और ये सान्नेवाल रेड मैंगो जो गोल्डन हट ने टेक ओवर किया जी। एक पटियाला में है, एक अभी अमृतसर आ रहा है, एक अम्बाला आ रहा है जी। तो बाकी ये तो चलो आप भाइयों का प्यार है और बाकी परमात्मा करने वाला आगे किस तरीके से सहयोग किस तरीके का मिल रहा है लोगों को? नहीं काफ़ी मतलब प्यार ही होता है, सहयोग तो क्या प्यार होता है भाई। सभी भाई आते हैं, बड़े भाव से आते हैं। और जो बहुत से आदमी जब पूछते हैं नीचे भी राणा जी बैठे हैं, अगर मैं बैठा हूँ तो ऊपर मिलने भी आते हैं जी। तो बड़ी अच्छी फील आती है मन को कि भाई चलो परमात्मा ने एक अच्छा मतलब एक पहचान दी और एक प्यार दिया है जी जी। तो जी ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈप्ट है सर? भाई जी देखो पंजाब को कह लो या पूरे हिंदुस्तान को कह लो, आजकल सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है बेरोज़गारी जी। बेरोज़गारी उसी को पता होता है जो बेरोज़गार होता है। और हम जितने भी गलत काम आदमी करेगा वो बेरोज़गारी के चलते ही करेगा। अगर आदमी के पास अपना कोई भी काम हो, रोज़गार हो, तो उस पर टाइम ही नहीं होता फालतू की बातों के लिए। बिल्कुल उस पर टाइम ही नहीं होता किसी से मिलना या वो गलत काम गलत स्टेप लेने के लिए। तो उसके लिए हमारा प्लान मतलब यही है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी, हमारा जैसे फूड से रिलेटेड काम है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जोड़े जी और उनका अपना काम स्टार्ट कराएं, जिससे वो अपना भी पालन पोषण करें और 10, 20, 50 लड़कों को और रोज़गार दें जी। तो उससे क्या होता है, एक मेरी कोशिश है जी बिल्कुल भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सामाजिक भला कर सके। तो बाकी करने कराने वाला कंसेप्ट क्या है वो सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कंसेप्ट उसमें कई तरह से है। जो आदमी जो भाई हमारे बगैर मतलब बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है काम करने के लिए, उनके लिए हमारी कचौड़ी का कंसेप्ट है। तो उसमें बड़े आराम से 1000, 1200, 1500 रुपये भी बंदा एक दिन में कमा लेता है। एक दिन में कमाता है। फिर हमारी फूड कार्टें हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ के जो काम करना चाहता है उसमें 40-50 हज़ार महीना भी कमा लेता है जी। तो उसके बाद अगर कोई भाई
गोल्डन हट के साथ जुड़ के गोल्डन हट की फ्रेंचाइजी मॉडल है उस पर डिस्कस करना चाहे वो आके मिल सकता है, तो उसके साथ 4-5 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है। वो जैसी इन्वेस्टमेंट है, बिना इन्वेस्टमेंट के भी और इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो गोल्डन हट सदा आपके साथ है, भाइयों का मतलब पूरे प्यार आशीर्वाद बना रहे। तो जिस भाई को भी काम करने की जरूरत है या काम करना चाहता है गोल्डन हट के साथ, वो आए और मिले जी, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, पटियाला गोल्डन हट 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ पड़ोसी ਸੀ, ਉਹ ਕੀ मामला? बाबू जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाने पीने की लाइन उसकी भी, वो थोड़ा सा कई दफ़ा आदमी को ये होता है कि भाई मेरे साथ ये खुलने लग रहा है, तो मतलब वो कोई इशू तो था ही नहीं, कोई वजह तो थी नहीं कोई। वो सिर्फ एक बहुत से पड़ोसी होते हैं कि वो अपने दुखों से दुखी नहीं होते, दूसरे को देख के ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही वो शख्स था। चलो कोई नहीं, जैसे भी है सब ਜੀ ਠੀਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ऐसा है, सबसे बड़ा कारण तो मैं कहूँगा किस्मत ही ख़राब है हमारी बच्ची की। जो हालात उसने पहले यहाँ जो दिल्ली में आंदोलन चला उसके दौरान भी देखा, और मेरे ख्याल से वो सिर्फ 100 ग्राम वज़न के लिए जो डिस्क्वालीफाई हुई। चलो इसमें किस्मत का दोष ज़्यादा मानता हूँ मैं, शायद अगर 100 ग्राम वज़न कुछ नहीं होता। वो पानी भी अगर हम पानी पीने लगे तो 300 ग्राम पी लेते हैं अगर एक रात पानी में, वो किस्मत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी कोई नहीं, उनके हौसले से जो पूरे देश की बेटियों को एक मतलब मैसेज मिलता है। और हमारा मतलब ये दुर्भाग्य है कि हम बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन बेटियाँ इस देश की जननी है। जी बिल्कुल। क्यों, बेटी होगी तो किसी न किसी परिवार को बनाएगी, चलाएगी, बढ़ाएगी। तो हमें कभी भी बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए जी, और बेटियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। वो चाहे फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स के फील्ड में हो। तो मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। चलो वो गोल्ड नहीं, कांस्य पदक लेके आए हमारी बेटी जी। और जो भी है उससे जो मतलब एक प्रेरणा मिलती है और बच्चों को, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ डिस्क्वालीफाई हुई है। देखो ये अंदर की बातें हैं, उस चीज़ के बारे में मैं नहीं ज़्यादा कुछ भी कह सकता जी। मैं तो सबसे बड़ी बात किस्मत की मानता हूँ कि भाई शायद उसकी किस्मत में नहीं था, अगली बार फिर कोशिश करें जी। और कहते हैं लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी जी। वो सिर्फ अपना हौसला जिंदा, जब तक जिंदगी है तब तक हौसला है, और हौसला है तो जिंदगी है जी जी। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਹਨੇ ਵਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँगा? भाई जी बड़ी कोशिश की सभी पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी जी, लेकिन परमपिता परमात्मा से हमने एक ही बात बोली थी कि हमें इस से अलग ही रखना, ये अलग चीज़ है। पर सियाने कहते भी जे चिक्कड़ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ करना, चिक्कड़ 'ਚ उतरना पैंदा। चलो भी जिंदगी पड़ी है, जब कभी परमात्मा सेवा देगा किसी तरह की तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी विधानसभा गया, फिर अब लोकसभा गया, तो हमने कभी 1% भी ये नहीं सोचा कि भाई हम किसी भी तरह का पॉलिटिशियन, दोनों पार्टियां नहीं। हाँ हाँ, आप मैं अब एक वो तो नाम लेके बताएं, लेकिन वो सभी करते भी हैं। चलो
वो नहीं भाई जी, वो नाम ना ले आप किसी का भी, वो सब ठीक है अपनी जगह। चलो, हमारा सबसे प्यार है, हाँ प्यार बिल्कुल, हमारा पार्टियों से प्यार नहीं है, हमारा हर उस इंसान से प्यार है जो इंसानियत के लिए काम करता है, जो इंसानियत के लिए सोचता है, जो इंसानियत के लिए आगे बढ़ता है जी। तो हमारा सदा उनके साथ प्यार बना रहेगा जी। हरियाणा ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? बाबूजी सारी अप्रोचे हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाना ही नहीं है, मेरा रास्ता भी उधर का नहीं है। अभी हमारा जो काम धंधा जो फैला पड़ा है सारा, पहले परमात्मा से अरदास करेंगे भी उसको सही तरीके से चलाए और सही तरीके से सिस्टम सेट होए। जी जी। उसके बाद कभी परमात्मा ने अगर सेवा लेनी होगी, वो भी एक, मैं एक वादा कर सकता हूँ, पॉलिटिक्स कहते हैं गंदी होती है, लेकिन आपका भाई आपको किसी भी रूप में गलत स्टेप पे नज़र नहीं आएगा जी। तो अगर कोई परमात्मा ने सेवा लेनी होगी तो वो समय बताएगा जी, और वो भाई तय करेंगे भाई हाँ ये इस चीज़ के लिए है या नहीं है, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग लड़ाई है जी। सारा देश लड़ रहा है जी। ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? बाबूजी इसमें दो चीज़ें हैं जी। देखो, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे किसान भाई शहीद हुए, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ जी। तो वो एक जुमला था सिर्फ किसान आंदोलन को ख़त्म करने के। तो मैं मोदी साहब से भी अपील करूँगा कि अगर कोई नाराज़गी है वो बैठ के उसका सलूशन करें, और जो वादे किसान भाइयों से हमारे से किए थे, हर चीज़ का बैठने के बाद सलूशन निकलता है। बिल्कुल। तो ये अकेले पंजाब के हरियाणा के किसानों की बात नहीं थी, ये पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई थी जी। और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारा अन्नदाता है किसान। तो एक किसान के मान सम्मान के लिए जो आप कर सको वो कीजिए, ताकि आने वाली सभी पीढ़ियाँ भी आपको धन्यवाद देती रहे कि भाई एक कोई किसानों के लिए किसी ने कुछ किया था जी। तो बाकी जो वादे किए थे, मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, मैं मान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि उन वादों के लिए एक बारी सोचा जाए जी, और सभी किसान भाइयों को जो मान सम्मान देना है वो ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ? बाबूजी ये दो चीज़ें हैं अब इसमें। दिल्ली पूरे देश का किसान आता था जी, शंभू मेरे ख्याल से सिर्फ पंजाब का किसान है, और ये कोई ना शंभू बॉर्डर वाला आखिरी आंदोलन है ना दिल्ली वाला पहला आंदोलन था। ये तो तमाम जिंदगी जब तक जिंदा रहना है आंदोलन तो चलते ही चलते हैं जी। तो अब एक पंजाब का आंदोलन है, एक पूरे देश का आंदोलन है, तो उसमें तो थोड़ा फ़र्क रहता ही है। लेकिन मैं बड़ा उनके अपने जो भाई हमारे बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, उनके सभी किसान भाइयों के हौसलों की दाद देता हूँ मैं जी, कि वो, मैं 2-3 दफ़ा मेरा जाना हुआ और वहाँ बुज़ुर्गों को देखता हूँ मैं, वही पिक्चर दोबारा सामने नज़र आती है कि भाई ये दिल्ली वाला जो किसान आंदोलन था उस दौरान उसी हिसाब से बैठे हैं सब जी। पूरे वहाँ तंबू फिक्स हो रहे हैं सारे लाइटों का उसका, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। और मैं सरकारों से यही गुजारिश करूँगा कि किसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सड़क पे बैठ जाए, एक दिन बैठ के दिखाए गवर्नमेंट अगर सड़क पे बैठ सकती है जी। तो किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे हैं जी, और पूरे देशवासियों से भी अपील करूँगा कि किसानों के हकों के लिए अगर आप कुछ अपील कर सकते हैं या कोई ऐसा जरिया बन सकता है तो हमें करनी चाहिए। ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਭੰਮਾ ਸਿੰਘੂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ? भाई जी देखो, किसान की लड़ाई अपने हकों की है
सरकार कोई भी हो, हर सरकार से रहती है, जी लेकिन जो मौजूदा सरकार है अगर वो ध्यान दे तो वो विवाद खत्म हो सकता है। और हम रही बात इलेक्शन की, उसका असर तो 100% नज़र आता है और पहले भी आया है। पंजाब में चुनाव हुआ उसमें भी नज़र आया है जी, और अब हरियाणा में चुनाव है, 1 अक्टूबर की डेट अनाउंस होगी है कल जी तो उसमें भी नज़र आएगा ही। जी जी वो नेचुरल सी चीज़ है। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।